Student, welcome to chemistry class. Student, as you know that we are studying organic chemistry, some basic principle and techniques. Some basic principle and techniques. And in this chapter, we are studying nomenclature. We are studying nomenclature. And in nomenclature, some basic things we have studied in earlier classes, and even the nomenclature of hydrocarbon chain and branched hydrocarbons named we have done also. In today class, we will start nomenclature of organic compounds having the functional group. Okay, and functional group in the earlier class we have defined what are the functional group. Functional group are the atom or a group of atoms bonded together in unique manner which decide the chemical property of the compound. If you see any compound, organic compound, their chemical property mostly depends upon the some different type of group of atom. Okay, let's see here. If any compound have same functional group, in any compound have same functional group, then that compound compound, or you can say there are so many compounds which have same functional group, then their reaction will be similar, their chemical property will be similar. For example, you can say here, see here, for example, here is CS3 C2H, CS3 CH2OH and CH3 whole twice CHOH. Okay, here functional group is OH, and OH represents alcohol. OH represents alcohol. Okay, OH represents alcohol. Thus, the chemical property of all alcohol will be nearly same, and all alcohol will react with sodium metal and give hydrogen. I hope you will understand. Okay. Suppose if there is same functional group, then their properties will be same. Okay, for example, we have taken alcohol, different type of alcohol such as methanol, ethanol, okay, and 2-propanol. All these have the same type of reaction. All these will react with the sodium and give the hydrogen atom. And the presence of functional group enables systematization of the organic compound into different classes. Presence of functional group enable systematization of the organic compound into different classes. अगर फंक्शनल ग्रुप ना हो तो हम कंपाउंड को डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएंगे, उनको हम जान नहीं पाएंगे कि कौन अलग है.
तो फंक्शनल ग्रुप का प्रेजेंट होना ऑर्गेनिक कंपाउंड को डिफरेंट क्लास में सिस्टमाइटाइज कर देता है। अगर कहीं फंक्शनल ग्रुप जो है कि CHO है तो इसका मतलब ये एल्डिहाइड है। अगर कहीं फंक्शनल ग्रुप COOH है इसका मतलब यहाँ पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। इसका मतलब यहाँ पे क्या है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। ओके, अब इसके बाद ये भी हो सकता है कि अगर किसी कंपाउंड के अंदर ढेर सारे फंक्शनल ग्रुप हों तो अब किसको पेरेंट मानेंगे, अब किसको जो है ब्रांच मानेंगे। इसके लिए अगर हमें फंक्शनल ग्रुप का देखना पड़ेगा, नेमिंग करना पड़ेगा, तो इसके लिए हमें प्रायोरिटी लेवल देखनी पड़ेगी। हमने क्या बोला, अगर एक कंपाउंड के अंदर एक से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप है तो ऐसे कंडीशन में कैसे हम डिसाइड करेंगे कि पेरेंट कंपाउंड क्या होगा। पेरेंट कंपाउंड क्या होगा, कैसे हम ये डिसाइड करेंगे कि पेरेंट कंपाउंड क्या होगा। मान लीजिए एग्जाम्पल के रूप में देख लीजिए, अगर हम यहाँ पे एग्जाम्पल ले लें, ठीक है, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग कि सपोज कार्बन कार्बन एंड कार्बन, हियर इज COOH and here is double bond O and rest of the valency is completed by hydrogen. Okay, what will be the name of this compound? Because here is one functional group, you can see here one functional group is carboxylic group. This one is the carboxylic group and this one is the keto group. This one is the keto group. Okay, and this one is the carboxylic. Okay, carboxylic group. Then how will you write the name of compound? Okay, which one will be the parent, which one will be subsidiary or branch. This can be determined by only knowing the priority level. If you know the priority level, then you can decide the name. Okay, see here, some we have the first of all we will come to know from where we have to numbering start. We have to start numbering. सबसे पहले ये जानेंगे कि हम नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहला काम है एक लंबी चेन डिसाइड करना कि पहले कौन सा लंबी चेन है, फिर उसके बाद हम वहाँ से नंबरिंग शुरू करेंगे जहाँ से फंक्शनल ग्रुप को लोवेस्ट पॉइंट मिले, जहाँ से फंक्शनल ग्रुप को लोवेस्ट पॉइंट मिले उसे हम वहीं से नंबरिंग करना शुरू करेंगे। द लॉन्गेस्ट चेन ऑफ द कार्बन एटम कंटेनिंग द फंक्शनल ग्रुप इज द नंबर सच अ वे दैट द फंक्शनल ग्रुप इज अटैच्ड एट द कार्बन एटम प्रोसेस लोवेस्ट पॉसिबल नंबर इन द चेन। हम किसी भी चेन में अगर फंक्शनल ग्रुप है तो नंबरिंग उस साइड से करेंगे जिधर से फंक्शनल ग्रुप बहुत पास में हो, नज़दीक में हो। ठीक है, अभी हम लोग इसके एग्जांपल्स देखेंगे। अब अगर इन केस पॉलीफंक्शनल ग्रुप आ जाते हैं, पॉलीफंक्शनल ग्रुप अगर आ जाते हैं तो क्या होगा। तो पॉलीफंक्शनल ग्रुप का ये डिक्रीजिंग ऑर्डर प्रायोरिटी लेवल दिया हुआ है। दिस इज द
order given. Polyfunctional group. Okay. At the first, here is carboxylic group. Here is SO3H group. Here is COOR group. Here is CuCl group. Here is amide group, cyanide group, aldehyde group, carboxylic group, alcohol, amine, double bond, triple bond. These are the orders. These are the order. These are the order. तो जब भी हम नेमिंग करेंगे, नेमिंग करते वक्त हमें इस ऑर्डर को ध्यान में रखना होगा कि सबसे पहले कार्बोक्सिलिक है, फिर सल्फोनिक एसिड है, फिर उसके बाद एस्टर ग्रुप है, फिर उसके बाद एसिड क्लोराइड ग्रुप है, एसिड एमाइड ग्रुप है, साइनाइड ग्रुप है और एल्डिहाइड ग्रुप है। उसके बाद कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। उसके बाद जो है कि कार्बोनिल ग्रुप है, सॉरी OH है, फिर NH2 है, फिर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड है। तो लास्ट प्रायोरिटी ट्रिपल बॉन्ड को दी गई है और फर्स्ट प्रायोरिटी कार्बोक्सिलिक ग्रुप को दी गई है। ओके, चलिए, तो ये आई होप अब ये समझ में आ गया होगा कि फंक्शनल ग्रुप होता। प्रायोरिटी लेवल जानने के बाद जो हमने यहाँ पे प्रायोरिटी लेवल देखा, ये प्रायोरिटी लेवल है। इस प्रायोरिटी लेवल को जानने के बाद हम लोग अब आते हैं नंबरिंग और नेमिंग पे। ये प्रायोरिटी लेवल हमेशा हमेशा याद रखना पड़ेगा। ये सबसे पहले कार्बोक्सिलिक होता है, फिर सल्फ्यूरिक एसिड होता है, फिर एस्टर होता है, फिर एसिड क्लोराइड होता है, एसिड एमाइड होता है, सल्फ्यूरिक एसिड होता है, एस्टर होता है, एसिड क्लोराइड, एसिड एमाइड, साइनाइड, CHO, C डबल बॉन्ड O, OH, ईथर, NH2, C डबल बॉन्ड O एंड C ट्रिपल बॉन्ड। ये हमारे प्रायोरिटी लेवल हैं जिनको हमें याद रखना है अगर हमें इनको करना है तो। ठीक है, यहाँ पे क्या है, कैसे अब नेमिंग करेंगे, क्या करेंगे, इसके पहले हम लोग जान लेते हैं कि NCERT में दिया हुआ है कब हमें सफिक्स यूज करना है, कब हमें प्रीफिक्स यूज करना है, कब हमें सफिक्स यूज करना है और कब हमें प्रीफिक्स यूज करना है। अब देखिए यहाँ पे एल्केन है, एल्केन में कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है, सफिक्स के रूप में एन है, ब्यूटेन जैसे है। एल्कीन है, डबल बॉन्ड यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप के रूप में दिखाई दे रहा है, फंक्शनल ग्रुप के रूप में डबल बॉन्ड दिखाई दे रहा है, इन बोलते हैं। ब्यूटीन हो गया 4 कार्बन को लेकर के, तो ब्यूटीन 1 अगर पहले कार्बन पे है तो ब्यूटीन 1 हो गया, दूसरे कार्बन पे है तो ब्यूटीन 2 हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है एल्काइन ग्रुप। ये एल्काइन ग्रुप जिसमें सफिक्स के रूप में आइन यूज किया गया है। ठीक है, ब्यूटाइन, क्या है, ब्यूटाइन। ओके, नेक्स्ट इज द ब्यूटाइन, बट here is the butane, okay, CH3 CH3 2CH3, okay, this is the butane 1. Now next is the halogen, halides. Halides means halogen. Okay, here is 1 bromobutane, 2 bromo. Now this is the halide, this is the halide, this is the halide. Okay, now alcohol group, COOH. okay, COOH अल्कोहल ग्रुप। हाइड्रोक्सी प्रीफिक्स होता है और ऑल जो होता है सफिक्स होता है। फिर से याद कर लिया, हाइड्रोक्सी प्रीफिक्स होता है और ऑल OL ऑल जो होता है वो सफिक्स होता है। अब कोई भी नाम लेंगे जैसे मेथेनॉल, प्रोपेनॉल,
ओके, तो अब इसके बाद जो है हम लोग नेक्स्ट आते हैं एल्डिहाइड ग्रुप हमने देख लिया। ओके, अब नेक्स्ट हम देखेंगे एल्डिहाइड ग्रुप। एल्डिहाइड ग्रुप का फंक्शनल ग्रुप होता है CHO। अगर कहीं ब्रांच के रूप में जुड़ा हुआ है तो हम इसको SCHO, ये हमारा फंक्शनल ग्रुप होता है। इसको हम अल के रूप में लिखते हैं। क्या लिखते हैं? एल्क, ALC। अगर ब्रांच के रूप में है तो एल्डो लिखेंगे। अगर ब्रांच के रूप में है तो एल्डो लिखेंगे। ओके, ब्रांच के रूप में रहेगा तो क्या लिखेंगे? एल्डो। तो यहाँ पे हम फिर से एक बार फंक्शनल ग्रुप को देखते हैं। जैसे ब्यूटीन, अब यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप में एल्कीन है, डबल बॉन्ड, सफिक्स इन यूज़ करेंगे। तो ब्यूट 1 इन, क्योंकि 1 और 2 कार्बन के बीच में है तो लोवेस्ट नंबर देंगे। एल्काइन, ट्रिपल बॉन्ड, यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप सफिक्स के रूप में हमेशा आता है आइन। और ब्यूट 1 आइन, क्योंकि पहले दूसरे कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है। और उसके बाद एरीन, एरीन का मतलब होता है बेंजीन रिंग। तो यहाँ पे कोई भी सफिक्स प्रीफिक्स या इस तरह का कोई नाम नहीं है, तो एग्जांपल हमारा जैसे कि बेंजीन हो गया। इसके बाद हाइलाइट्स है। तो हाइलाइट्स में हमारा जो है कि हाइलाइट्स में एक्स जो होता है, एक्स क्या होता है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब एक्स होते हैं। ठीक है, ये सब एक्स होते हैं। अब इनको हम सफिक्स के रूप में नहीं यूज करते कभी भी, हमेशा हम इनको फंक्शनल ग्रुप में प्रीफिक्स के रूप में यूज करते हैं। जैसे 1 ब्रोमोब्यूटेन, 1 ब्रोमोब्यूटेन मतलब A1 पे Br लगा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है अल्कोहल। इसमें फंक्शनल ग्रुप OH है। अगर ये कहीं प्रीफिक्स के रूप में भी मिल सकता है, कहीं भी अगर फंक्शनल ग्रुप जैसे एल्डिहाइड और अल्कोहल दिया हुआ है, जैसे एग्जांपल के रूप में हम लोग ले सकते हैं कि एक मिनट, ये हाइड्रोक्सी हो जाएगा प्रीफिक्स के रूप में, ऑल हो जाएगा सफिक्स के रूप में, ब्यूटेन टू ऑल, ब्यूटेन टू ऑल। जैसे भी एक एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं, यहीं पे लिख लेते हैं, जैसे CH3 CHOH, ओके, एंड CHO, ये कंपाउंड है CH3 CHOH CHO। तो अब यहाँ पे OH क्या है? ये OH प्रीफिक्स के रूप में है। क्या है? प्रीफिक्स के रूप में। तो जब इसका नाम लिखेंगे तो क्या होगा? इसका नाम होगा 2 हाइड्रोक्सी, 2 हाइड्रोक्सी हाइड्रोक्सी प्रोपेनल, ओके। हम यहाँ पे एल्डिहाइड के लिए अल यूज़ करते हैं, तो 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनल हो जाएगा ये। ओके, अब इसका नेक्स्ट हमारा फंक्शनल ग्रुप है एल्डिहाइड ग्रुप। एल्डिहाइड में CHO है। ये भी अगर मान लीजिए कि इससे बड़ा ग्रुप भी, एल्डिहाइड से बड़ा ग्रुप भी अगर चेन के अंदर है, जैसे अभी हमने दिखाया था कि CH3 CHO CH3, जैसे कंपाउंड अभी देख लेते हैं, जैसे CH3 CHO एंड COOH। ओके, तो अब ये लार्ज ग्रुप है, ये स्मॉल ग्रुप है, तो इसकी नेमिंग करते वक्त ध्यान रखेंगे। इस CHO को अब हम जो है कि ब्रांच के रूप में लेंगे। तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे? 2 फॉर्मिल प्रोपेन,
प्रोपेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड। ओके, इसको 2-फॉर्मिल प्रोपेनोइक एसिड कह सकते हैं। ठीक है, इस तरह से जहाँ मल्टीपल फंक्शनल ग्रुप आएंगे हमें इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, जहाँ भी मल्टीपल फंक्शनल ग्रुप आएंगे हमें इस बात का ध्यान रखना होगा कि प्रीफिक्स किसे लेंगे और मेन पेरेंट किसको लेंगे, तो इसके लिए हमें प्रायोरिटी लेवल देखना होगा। क्या देखना होगा? प्रायोरिटी लेवल। चलिए, अब इसके बाद हम लोग आते हैं नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप पे, कीटोन। कीटोन C+O, अगर प्रीफिक्स के रूप में आता है तो ऑक्सो, नहीं आता है तो ओन हो जाएगा। जैसे यहाँ पे ब्यूटेनोन। ठीक है, नाइट्राइल CN ग्रुप, CN-, अगर प्रीफिक्स के रूप में यूज करते हैं तो इसको बोलेंगे साइनो, और पेरेंट के रूप में यूज करते हैं तो नाइट्राइल। जैसे पेंटानाइट्राइल यहाँ पे दिया हुआ है, पेंटानाइट्राइल। ठीक है, नेक्स्ट अब हम आते हैं ईथर एंड कार्बोक्सिलिक, ईथर एंड कार्बोक्सिलिक। ईथर ROR, एल्कोक्सी कहते हैं इसको प्रीफिक्स के रूप में, और प्रीफिक्स ये हमारा ईथर है। तो इसमें जो हमारा एक ऑक्सीजन के साथ एल्कोक्सी हो जाएगा, दूसरे ऑक्सीजन के साथ एल्केन हो जाएगा। तो यहाँ पे प्रीफिक्स के रूप में हम सफिक्स के रूप में एल्केन लिख सकते हैं, एल्केन। ठीक है, अब एल्कोक्सी एल्केन हो गया। अगर यहाँ पे लिखा हुआ है CH3 O C2H5, अगर कोई यहाँ पे ये छोटा है तो इसको हम क्या करेंगे, मेथॉक्सी लिखेंगे, और इसको मेथॉक्सी इथेन, क्या हो जाएगा? इथेन। ठीक है, मेथॉक्सी इथेन। तो इस तरह से हम लोग नेमिंग करते हैं। चलिए ठीक है, अभी और भी फंक्शनल ग्रुप है, उनको भी देख लेते हैं। ठीक, इसी तरह से हमारा यहाँ पे एल्डिहाइड के बाद कार्बोक्सिलिक है यहाँ पे। ठीक है, हमने यहाँ पे क्या है, कार्बोक्सिलिक। अब देखेंगे हम लोग कार्बोक्सिलिक, COOH, कार्बोक्सी बोलते हैं अगर साइड में कोई चेन होती तो, मीन्स 2 से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप होते हैं तब। और यहाँ पे ओइक एसिड कहते हैं, क्या कहते हैं? ओइक एसिड। अब यहाँ पे अगर देखा जाए, जैसे एग्जांपल दिया हुआ है, इस एग्जांपल से ये पता लग रहा है कि इसका नाम क्या पता कर सकते हैं। ठीक है, कैसे पता करेंगे? कार्बोक्सिलिक में जैसे यहाँ पे ब्यूटेनोइक एसिड 4 कार्बन था, COOH था, ऐसे CH3 CH2 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 CHO लिखा है, COOH। तो क्या होगा? 1 2 3 4 ब्यूटेनोइक एसिड, ब्यूटेनोइक एसिड। ओके, चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग कार्बोक्सिलेट आयन, वही हो जाएगा एसिड क्लोराइड। एसिड क्लोराइड का COX होता है। एसिड क्लोराइड का क्या होता है? COX। X की जगह पे तो कोई हैलोजन ही होगा, ऑक्सीजन की जगह ऑक्सीजन है, कार्बन की जगह कार्बन हो जाएगा। इसको हैलोकार्बोनिल बोल सकते हैं। इसको क्या बोलते हैं? हैलोकार्बोनिल। इसको ऑयल हैलाइड बुलाना। क्या? ऑयल हैलाइड यहाँ पे सफिक्स के रूप में यूज होता है, जैसे ब्यूटेनोइल क्लोराइड, ब्यूटेनोइल क्लोराइड। ओके, इसी तरह से हमारा
एमाइन है NH2, एमाइन। अमीनो इसका सफिक्स होता है, एमीन इसका अमीनो इसका सफिक्स होता है, एमीन इसका प्रीफिक्स होगा। ठीक है, अब इसका आंसर हो जाएगा 2-ब्यूटेनोन, ब्यूटेन 2-ओन, ब्यूटेन 2-ओन। ओके, एमाइड CONH2, यहाँ पे CONR2, ये सभी क्या है, एमाइड है। इनको जो है कि हम कार्बामाइल कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्बामाइल। एमाइंस को हम क्या कहते हैं? कार्बामाइल। अब इसका नेम लिखते वक्त हम क्या करते हैं? एल्केनामाइन लिखते हैं, एल्केनामाइन। ओके, इसको हम क्या कहेंगे? एल्केनामाइन कहेंगे। चलिए, अब इसके बाद हम लोग कल की क्लास में जो है कि कल की क्लास में एमाइंस के बाद एमाइड हो गया, बाकी जो बच्चे ग्रुप होंगे उनके नेमिंग करेंगे और फिर प्रैक्टिस करेंगे एक साथ हम लोग। ओके, थैंक यू।